Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Minister, Punjab National Bank. So now IBPS RRB exam is very near, and some of you have commented that, sir, my marks are not improving, or I am scoring low, and I am not able to cross the cutoff that is given in the mock test. What should I do? Now, in all these situations, the remedy lies in learning more and more topics. Whenever our score is low, that means we have to learn more topics and there is some deficiency at knowledge level. And second reason can be our speed and accuracy. Due to lack of accuracy and speed also, our scores may be less. So for both the things, the remedy is first. If I am not able to score high and my knowledge in some of the topics is missing, the solution is topic test. So make a list of topics in reasoning as well as quant. What are the topics where you are lacking? And then use topic test, attempt the topic test of that specific topic and see the solution. Looking at solution is most important because solution will teach you how these questions are solved. So the moment you look at the solution and you are able to understand how this question is solved, reattempt that topic test again. That will reinforce knowledge with you and ultimately you will be able to solve similar questions in the mock test. So as far as topic wise knowledge is concerned, use the topic test. Second thing is speed and accuracy. So speed and accuracy has to be managed, and for that there is a very special tool, that is speed drill. Use that. So for both the things I am providing you a link in the description box. Click the link, register, take topic test and speed drill and apply coupon code AA03 to have 10% off. You can buy these through Smart Kida app also. Download the app, select both the things and apply coupon code AA03 to have 10% off. So these are 10-15 days where course correction is required. If you will be able to correct or improve your knowledge in the areas where you lack knowledge, and if you are able to learn how to manage speed, how to manage accuracy, your performance in the real examination can be reasonably good. So this is the right time. If you feel that your scores or mocks are not adequate, if you feel your scores in mocks are not rising, if you feel your score is mocks are falling, in all these circumstances, it is very essential you should cover all topic tests of your weak topics. This is a miraculous thing, and the people those are believing in this technique and using this technique, they are showing remarkable improvement. So first thing is we have to understand where I am lacking, and the second thing is we have to shift our focus on those topics, and we should not attempt more than one full length mock test in a single day. The more usage of full length mock test will only drive away your time. This is the time when you should focus more on topic test, focus more on speed drill. That will be very, very fruitful for you in the coming examinations. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. पिछले 2-3 दिन में मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें आपने कहा कि सर मेरे मॉक में मार्क्स नहीं इम्प्रूव हो रहे हैं, या मेरे मॉक्स में मार्क्स गिर रहे हैं, या मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इम्प्रूव करूं. तो इन सब चीज़ों का 2 सलूशन है. अगर आपके मार्क्स स्थिर हो गए हैं या घट रहे हैं या बढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि या तो आपके कुछ टॉपिक्स की नॉलेज अभी इनएडिक्वेट है या आपकी स्पीड और एक्यूरेसी के अंदर दिक्कत है. ये 2 कारण बनते हैं जो आपके मॉक में
नंबर नहीं बढ़ते, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे हैं या कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं या एक्यूरेसी से नहीं कर पा रहे हैं तो भी स्कोर कम आएगा। और अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, टॉपिक की नॉलेज ही नहीं है, तो वो आंसर तो करेक्ट आएगा नहीं। तो ये दो बेसिक कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स में नंबर नहीं बढ़ते हैं। तो इसकी कोर्स करेक्शन क्या है, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं? हम गिने चुने दिन बचे हैं, तो इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए? हमें उन टॉपिक्स के टॉपिक टेस्ट अटैम्प्ट करने चाहिए जहाँ जहाँ मैं कमज़ोर हूँ। क्योंकि जब आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट किया तो आपने ये तो चुन ही लिया है मेरा कौन कौन सा टॉपिक अभी भी कमज़ोर है, उसकी लिस्ट बना ली है। आप एक एक टॉपिक टेस्ट उठा लीजिए और उस टॉपिक टेस्ट को अटैम्प्ट करिए और उसका सोल्यूशन जरूर देखना है, क्योंकि सोल्यूशन से ही आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना था। क्योंकि खाली आप टेस्ट देते चले जाओगे उससे आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। टेस्ट देने के बाद सोल्यूशन देखना जरूरी है। सोल्यूशन से आपको पता लगेगा मेरे को कैसे सॉल्व करना चाहिए था ये क्वेश्चन। तो एक एक करके आप टॉपिक टेस्ट करते चले जाएंगे और उसका सोल्यूशन देखते चले जाएंगे और आप देखेंगे सभी टॉपिक के अंदर आपकी नॉलेज में रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है। जिन लोगों ने इस टेक्निक को आजमाया है, जिन्होंने इस पे भरोसा किया है, उनके बहुत ही रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो पहला तो ये है कि आप यूसेज ऑफ टॉपिक टेस्ट बढ़ा लीजिए इन दिनों में, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक से अधिक नहीं करना है एक दिन के अंदर, उसका टाइम रिड्यूस कर लीजिए। मैक्सिमम 1 घंटा लगाइए आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे, बाकी टाइम आपकी एनर्जी लगनी चाहिए टॉपिक टेस्ट के ऊपर। सेक्शनल मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं इन दिनों के अंदर, वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, मगर पहले आप टॉपिक टेस्ट को से सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग करिए जहाँ जहाँ कमजोरी है। दूसरी दिक्कत आपकी होगी स्पीड और एक्यूरेसी की, और उसके लिए बहुत अच्छी टूल है स्पीड ड्रिल। उससे निरंतर प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी स्पीड भी बढ़नी शुरू हो गई और आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। अगर आप स्पीड और एक्यूरेसी इम्प्रूव कर पाते हैं तो आपके मॉक्स के अंदर नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे और रियल एग्जाम में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है, इस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, ये टॉपिक टेस्ट ले लीजिए, स्पीड ड्रिल ले लीजिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट ले लीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ले लीजिए और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। इसको आप स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी ले सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, चारों चीज़ें आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसको आप करिए। देखो ये टाइम टेस्टेड मेथड्स हैं। मॉक में नंबर ना आने का मतलब है मेरे कुछ टॉपिक्स कमज़ोर हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। और इसी तरह मॉक टेस्ट में कम नंबर आने का कारण हो सकता है कि आपकी स्पीड नहीं है या आपकी एक्यूरेसी नहीं है। तो अगर आप स्पीड और एक्यूरेसी पे काम कर लेते हैं और उन टॉपिक्स में नॉलेज बढ़ा लेते हैं जिन टॉपिक्स में आपकी नॉलेज नहीं है, तो मॉक्स में आपके नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे और रियल एग्ज़ाम में भी आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जाएगी। ये आजमा के देखिए, बहुत ही सॉलिड तरीका मैंने आपको बताया है। पहली चीज़ है इस पर विश्वास करना, फिर उसको लागू करना। गॉड ब्लेस यू ऑल।